Hello everyone, welcome to Free UPSC initiative by Pratik Saurabh. So let's continue with our mains answer writing section. We already have uploaded 3 mains answer writing in the and that you can see in the playlist. Okay, so from today onwards, I will try to give you the live demo. Okay, so I will write the question with you here only, so that you will have an idea how to approach for an answer. Okay, so let's just start now. So what is today's question? Like, India's aspiration to industrialize should be founded on safety. Comment. Now, two things are there. Two to three things are there. It is talking about the industrialization things. Okay. Again, the second thing, India's aspiration. It's not talking as a general for industrialize as a whole for the world. It is Indian specific. Okay, and third, it is talking on the safety. Like, on a safety wise, we are not going on a that much correct direction. Fine. So what things are lagging? And if there is some safety issue, it means there is some incident, so there is some accidents. Correct. So, and this is a 15 marks question, and you have to write in 250 words. That's why to think about the question is very important. How you should approach the question, how you should give the introduction. If it is saying about the safety, then we can like start it with like industrial accidents in India. Okay, so by covering all those things in the your introduction part, then we can move ahead by providing the body and the conclusion. Clear? Okay, so let's just start with the answer now. We can like write industrial accidents in India and elsewhere. Here, when you are writing, you can just generalize the things. We have included India, but as elsewhere also we are including in the world constitutes a major problem for industrial establishment. Okay, the most recent being, जो अभी मुझे याद है, वो है नेवेली एंड विशाखापट्टनम डिजास्टर. So as we can underline these points, and here it is not showing give some example, so we won't need to elaborate about the disaster and all those things. Clear? Because we have to save our time also. Now that is fine. We have talked about the industrial accidents in India and elsewhere. So when accidents happens, obviously when there is shortfall in the safety regulation, so you can write like here. Instead of point, if you are able to make some diagram or flow chart or something, so that will be a better thing. Like, shortcoming of safety regulations. Why I have written the word regulations? Obviously there are some laws, but these laws are not effectively implemented, so that's why the shortcoming. अब उसका shortcoming क्या होता है? ठीक है, बहुत बार होता है कि डिज़ाइन शुड बी परफेक्ट फॉर बॉयलर और समथिंग, बट वो हो नहीं पाता है. इट मीन्स इम्प्रॉपर डिज़ाइन. ओके, दूसरा इशू ये हो जाता है कि जो स्टाफ होते हैं, हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर ली या कुछ भी किया,
बट उस तरीके के जो हमारे पास स्टाफ नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि इनकम्पिटेंट स्टाफ्स होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग की काफ़ी ज़रूरत है। अब देखिए, मैं इस तरीके से आंसर अप्रोच कर रहा हूँ कि मैंने इसकी कमियां बता दी, बाद में मैं इसी का जाके एक सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है, ताकि दिमाग पे ज़्यादा लोड भी नहीं रहेगा। ओके, इसके बाद आपका क्या हो गया, लैक ऑफ मेंटेनेंस। हम जो भी चीज़ लाते हैं उसको आप वैसे भी देखते होगे, घर में भी गाड़ियां हैं, हम मोस्ट ऑफ लोगों की आदत है कि जब तक वो कुछ ख़राब ना हो जाए या डिजास्टर ना हो जाए तब तक हम उसको मेंटेन नहीं करवाते हैं। तो प्रॉपर मेंटेनेंस जो होता है वो ऑलवेज ज़रूरी है। और एक ये भी चीज़ होती है कि आप इनएफिशिएंसी इन इम्प्लीमेंटेशन। अब बात ये है कि मैं तो और भी पॉइंट्स बना सकता हूँ, हाँ आप भी बना सकते हैं कि, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया स्क्वायर सा, हमने 4 पॉइंट दे दिए, ये देखने में भी ठीक लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से डिज़ाइन किया कि हाँ उन्हें भी लग रहा है कि यस द पर्सन हैज़ रिटन द आंसर रियली वेल, और साथ में आपने स्पेस यूज़ कर लिया है, सब कुछ अच्छे से किया है, ठीक है। हमें याद रखना होता है क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं रहता बिल्कुल भी। ओके, चलिए, अब हमने शॉर्ट फॉल की बात कर ली है, तो अब हम ये भी बात कर रहे हैं कि अब आप यहाँ पे क्या कमेंट करने की बात की जा रही है। तो भाई गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं है, लॉज लाए हैं, बहुत सारे लॉ लाए हैं, लेकिन उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस पर हम वैसे अब स्टार्ट हम कर सकते हैं कि ऑल दो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब यहाँ पर GOI लिखे, कुछ लोग बोलते हैं फुल फॉर्म लिखना चाहिए, बट ठीक है। या फिर आप एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि एक बार आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दे, ब्रैकेट में GOI लिखे और आगे GOI यूज़ करते रहे। आइडियली ये ज़्यादा बेटर है, बट ठीक है, मैंने भी ऐसे लिख दिया है। ऑल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड various acts to reduce misery of the people, okay, such as कौन कौन से एक्ट की हम बात कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने ये लिखा है, अब यहाँ पे बॉयलर ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, और इंडस्ट्री में बाकी भी इश्यूज हो गए थे, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं इंडियन फैटल एक्सीडेंट एक्ट, हम यहाँ पे इसकी बात कर सकते हैं क्योंकि ना मैंने एग्जाम्पल से यहाँ पे रिलेट कर लिया है। इसके बाद इंडियन बॉयलर एक्ट, ये बात की, लेकिन बट द इनएफिशिएंसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे जगह अच्छे से है नहीं मेरे पास, बट ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपका। इम्प्लीमेंटेशन इज स्टिल अ मेजर कंसर्न। देखिए, जब भी आपको कमेंट पूछा जाए तो आपको कुछ भी बहुत हाईली क्रिटिसाइज भी नहीं करना है गवर्नमेंट को और पॉलिसीज़ को, और ना ही बहुत ज़्यादा फेवर में लिखना है। आपको वहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच बताना है कि ठीक है किया भी है लेकिन स्टिल अ मेजर कंसर्न, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे जो है हाईलाइट कर सकते हैं कि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ ठीक है, दे नो अबाउट दोज थिंग्स, ठीक है, स्टिल अ मेजर कंसर्न, यहाँ तक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं हम इस पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, अब ये जो पॉइंट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सीडेंट, ये कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है।
ये इस तरीके के बॉक्स जो होते हैं, शॉर्ट कमिंग ऑफ सेफ्टी रेगुलेशन है, इस तरीके से ना ऑलरेडी आपके माइंड में डिज़ाइन रहनी चाहिए चीज़ें। जिन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सीडेंट ही बोल दिया, मैं कुछ आंसर वांसर नहीं बोल रहा हूँ, अरे मैं कॉन्सिक्वेंसेज लिख दो, ठीक है। तो पहला तो थ्रेट टू लाइफ, ऑब्वियसली सी बात है। और क्या लॉस हो सकता है? सोशल लॉस हो सकता है कि सोसाइटी में भाई पूरा लॉस हो जाए, फिर सोसाइटी तहस नहस हो जाए। इन्वायरमेंटल लॉस हो सकता है, इकोनॉमिक लॉस, ऑब्वियसली। बाकी आप बहुत सारे लॉस लिख सकते हैं, बट आपने नोटिस किया होगा इकोनॉमिक लॉस में मैंने लगभग सारे इकोनॉमिक कर दिए, लाइफ पे पूरा मेडिकल सेफ्टी एंड और इसकी बात कर दी, इन्वायरमेंट लॉस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट की बात करना ऐसे समय पे, सोशल लॉस, ठीक है। हर तरीके की हमने बात कर दी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये बता दिया शॉर्टफॉल ये कॉन्सिक्वेंसेज, बट ये सब ठीक कैसे किया जाए, है ना। तो कुछ एक स्टेप्स तो होने चाहिए, स्टेप्स टू प्रिवेंट सच अटैक्स सॉरी एक्सीडेंट्स। तो थ्रेट रेट यहाँ पे बात की तो अटैक ही दिमाग में आ गया था, बट ठीक है, होता है। इसको आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद आप पॉइंटर्स दे दें कि आप प्रिवेंट करना चाह रहे हैं ऐसे एक्सीडेंट्स को, ठीक है। तो पहला क्या है कि आप सेफ्टी मेजर, सेफ्टी मेजर्स की बात कर सकते हैं कि ये जो गाइडलाइंस हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो प्रॉपर गाइडलाइंस शुड बी प्रोवाइडेड and monitoring should be done periodically by the government, ठीक है। पहला एक सेफ्टी मेजर हो गया। दूसरा क्या होगा आपका, अब ठीक है आपने भाई सब कुछ क्लियर आपको बताना चाहिए। दूसरा जो है, अगर नहीं किया तो एक डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं बहुत बार क्या होता है कि इंसान इसलिए ध्यान नहीं देता कि कुछ ज़्यादा डिसिप्लिनरी एक्शन ही नहीं होता है, हो गया तो हो गया, मशीन फेल्यूर बोल दो, ठीक है। तो अब जब हम इसकी बात करें तो इट must be taken against the people who is responsible for the incident, ठीक है। ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन तो वहाँ पे आपको लिखना नहीं रहता है। अब लगभग आपने इतने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, अब आपको खुद ही लग रहा होगा कितना टाइम लग जाता है, ठीक है। अभी क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो है 10 से 12 मिनट में करना है। 10 मिनट मैक्स आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो तैयारी होगी, ओके। अब 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, 1-2 पॉइंट्स और हम लिखेंगे और फिर कंक्लूड कर देंगे, ओके। डिसिप्लिनरी एक्शन की हमने बात कर दी, हमने सेफ्टी की बात कर दी। अब तीसरा जो सबसे ज़्यादा पॉइंट है, देखिए मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनकम्पिटेंट स्टाफ हमने बोल ही दिया है, ठीक है। तो अब इससे जो है उनकी ट्रेनिंग की बात हो जाएगी, फिर ट्रेनिंग दे दो यार उनको। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो दे शुड बी ट्रेंड thoroughly regarding the safety
मेजर्स, ठीक है, रिगार्डिंग द सेफ्टी मेजर्स। ये तो चलिए वो एक्सपेक्ट कर ही रहा होगा कि आपने सेफ्टी मेजर्स लिखेंगे, शुड बी ट्रेंड। साथ में आप ये भी बता दें कि एंड मस्ट अवेयर of the steps to be taken while in emergency। ये भी क्लियर होना चाहिए कि कुछ इमरजेंसी आ गई तो ये बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फटाफट कर दो। जैसे मानिए कि कहीं पर आग लग गई है, भाई फायर एक्सटिंग्विशर चलाते आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने तुरंत आग रोक दी तो छोटा मोटा लॉस होगा, अदरवाइज पूरी आग भड़क गई है ना। अभी यहीं पे हुआ है, लाइब्रेरी पूरी जल गई थी दिल्ली में, जहाँ मैं पटेल नगर में रहता हूँ, वहाँ पर लाइब्रेरी जल गई पूरी, ऊपर पतंजलि का स्टोर था वो भी जल गया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसके साथ अब ये तो ठीक है, इनको बोल दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट क्या हो जाता है, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज मस्ट बी रेगुलरली check for faults and do maintenance without delay, ठीक है। फॉल्ट्स जो है कंटिन्यू आप चेक करते रहें, कहीं भी दिखे तो उसे तुरंत जो है मेंटेनेंस करे, उसका मेंटेनेंस करें विदाउट डिले, ओके, ठीक है। अब ये पॉइंट्स काफ़ी हैं, इतने हमने लिख दिए, वो ऐसा नहीं है आप 4, 5, 10 के चक्कर में पड़े। जब आप जब लग रहा है कि टाइम कम है, हमने जब इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, हमने उसके बारे में शॉर्टफॉल्स की बात कर ली है, स्टेप्स की बात कर ली है। कभी आपको लगे कि इतनी टाइम में ब्रीच कर रहा हूँ, अब एक पॉइंट लिखूँ या मैं यहाँ पर कंक्लूजन लिखूँ, ऑलवेज गो फॉर कंक्लूजन, ठीक है। क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा होता कि 4 पॉइंट लिखे, 2 पॉइंट लिखे, 5 पॉइंट लिखे, उन्हें उससे मतलब नहीं है। आप बस इफेक्टिवली अपनी सबसे प्रॉपर अप्रोच दिया है या नहीं, ओवरऑल आपने सब कुछ कवर किया है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन है, अब आपने सेफली अपना आंसर कंप्लीट किया है कि नहीं, तो वो भी एक अप्रोच होता है, ठीक है। चलिए, तो अब इस पे हम दे सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट is the responsibility of the people and the government for having more reliable safety practices। And their practice should not endanger human life and environment as a whole, ठीक है। तो शुड नॉट इंडेंजर ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरनमेंट एज अ होल, इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। अब क्या है यहाँ पे, अगर बात की जाए
ये जो पॉइंट लिखा है कि देयर प्रैक्टिस शुड नॉट इंडेंजर, कि मान लिया आपने कुछ पॉलिसी बना दी कि ठीक है ये ज़रूरी है, इससे ब्लास्ट नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी, बट आप उसमें ह्यूमन लाइफ का ध्यान ही नहीं दे रहे। ठीक है भाई, एक इंडस्ट्री है मान लीजिए जो बॉयलर ही बना रही है, अब वहाँ पे वो बोल रहा है कि ठीक है बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो है बॉयलर का नट जो है आपको तब टाइट करना है जब टेम्परेचर वहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे में तो इंसान ही मर जाएगा ना, 55-60 पर तो कंटिन्यू आप वहाँ पर रख दीजिएगा, तो वो चीज़ नहीं है। अब जो भी करें, या फिर मान लीजिए आप वेस्ट को कहीं डिस्पोज कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान दे रहा है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, तो वो उसको डिस्पोजल से लेके सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि इन्वायरमेंट से लेके ह्यूमन को भी नहीं हो, और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो। ठीक है, डेवलपमेंट और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द people and the government for having more reliable safety practices. Okay, so I hope you have liked this initiative, and do subscribe, like and share with your friends. Fine. And also Vision IS test series I have started for prelims, that you also will get in the playlist, and I will definitely keep it in the description box also. Fine. So all the best. We'll meet in the next session.